मार्च को जो तार ठोक रहे थे बंद कर देंगे सारा तेल, नहीं पहले आम आदमी का तेल। Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, where were we last? Which was the topic that we have completed yesterday? Transformation. Okay, fine. Now let us have a application of all those things, isn't it, that we have learned, that we have understood. Let us apply that in one of a, let's say, data set, isn't it? Because applying in a practical way will give a much more informative information. Let's say that will be much more good for our practical implementation. So we will have a small data set where we will create a bit issue over there, and then we will work on it. Okay. Do we have any data set? It would be like this. Sales भी है, ये भी है. ठीक है. Yes, okay, that would be good. Okay, let's say we'll take this particular data set. Okay,
यही पे चलो, यहाँ पे क्वेश्चंस भी है और हम इसको वर्क भी कर लेंगे, ठीक है। Okay. Now, let's say we have a data set over here, which is this one. Let me increase the size, font size, and all details. It will be visible for us. Okay, that will be good. So we have a data set, which is this one, a small data set. Again, small data set consists of date format, consists of date data type, categorical data, a numerical data, again numerical, but again in numerical we have two different, let's say, data type, isn't it? One is of a data which may or which can contain floating values, isn't it? Because USD, in the sense of sales, it could be sales could be, let's say, 12.50, or it can be 12,020, or let's say 70 something. It can be that also, isn't it? So in this scenario, this particular column, though it has integer value in it, but it may contain floats also. But for sure, when we talk about unit sold quantity, it will always consisting of integer only. We cannot have, let's say, 3.5 unit sold, isn't it? This is not possible. So that type of data we have. Again, we have combination of a data where numerical data is, date is, category data is there, and we don't have city, country like that, but yes, we can use that also. Okay, but let's get through this data. Here on the first glance, when we have understood about, let's say, when we have learnt about first business moment, okay, now based on that we will go through each and every point, एक एक करके सब पॉइंट को हम कवर करेंगे, ट्राई करेंगे कि अगर हमारे पास में कभी कुछ इस तरह से डेटा सेट आता है तो क्या हम उसमें रियल लाइफ में सही में कभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या उससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है जो हमने सीखा है। लेट अस ट्राई टू डू दैट। ओके, तो फर्स्ट, जैसे ही पहले आपके पास में डेटा आता है, आपका पहला काम क्या होता है गाइस? आपके पास में डेटा आते ही पहले काम क्या करना चाहिए, बताओ। डेटा सब चेक करना चाहिए, लाइक व्हाट फील्ड्स आर देयर। हाँ ठीक है, डेटा का फील्ड तो देखो आपके पास है। सिर्फ डेटा का फील्ड मतलब क्या? उसका नाम चेक करोगे क्या? मतलब क्या चेक करोगे? व्हाट एग्जैक्टली? उसका डेटा सेट, मतलब जैसे डेट है तो डेट, नंबर है तो नंबर, या फिर नंबर ओके टेक्स्ट में भी हो सकता है। डेटा टाइप ओके, सर। तो हाँ एग्जैक्टली, तो आपका कहना है कि डेटा टाइप पे हम थोड़ा सा पहले फोकस करेंगे, क्योंकि डेटा टाइप सही रहेगा तो आगे का सब प्रोसेस सही होगा, विच इज वेरी गुड। करेक्ट है सबका आंसर, बराबर है जिन्होंने कहा है। सो फर्स्ट हमारा काम होता है कि भले, क्योंकि क्या होता है देखो, डेट कॉलम होने के बावजूद भी हो सकता है कि उसके अंदर में जो डेटा है वो डेट ना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। For example, let's say we have this information. Okay, now here everything, or let's say every value which is present in this is of a date format and date data type. Now remember that many people get confused when I say date format or date data type. ये दो अलग चीजें ध्यान रखो। ओके, डेट फॉर्मेट में होना और डेट डेटा टाइप होना बहुत अलग चीज है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देखो आपके पास में क्या लिखा है, ये आपने डेट लिखा है 1/8/2024। ना, ये डेट फॉर्मेट में है कि नहीं? ऑब्वियसली डेट फॉर्मेट में है। क्यों है? देखो आपके पास में फॉर एग्जांपल, हाँ, डी है, वाई है, हाँ, और सॉरी सॉरी माय बैड, या डी है, MM है ना, वाई, ये फॉर्मेट है आपके पास में। तो ये फॉर्मेट तो सही है ना, फॉर्मेट के हिसाब से देखोगे तो फॉर्मेट तो सही है। बट अगेन जब हम इस चीज को लिखेंगे या फिर इस पर्टिकुलर डेटा को इनपुट करते हैं तो लिखने का तरीका अभी आपके सामने, चलो मैंने ऐसे फॉरवर्ड स्लैशेस यूज किए, ठीक है। कल जाके अगर मैं इसे डैश करूंगा और अगर यही फॉर्मेट करूंगा तो भी डेटी फॉर्मेट है। कल जाके मैं डॉट यूज करूंगा बीच में तो भी डेटी फॉर्मेट है। अगर मैं उसमें एट द रेट करके कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखता हूं तो भी डेटी फॉर्मेट है। क्योंकि जो भी आप लिख रहे हो ना, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर रहे हो, दोस आर ऑल डेलिमिटर्स। क्या है वो? डेलिमिटर्स। डेलिमिटर्स मतलब क्या? अगर मैं कोई भी एक लेट्स से सेंटेंस लिखता हूं, लेट्स से माय नेम इज XYZ। ओके, आप बताना है कि यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, यहाँ पे कितने वर्ड्स है आपके पास? 4। ठीक है, 4 वर्ड्स है। कैसे आपने डिसाइड किया कि 4 वर्ड्स है? आपने क्या बेसिस में, कौन से बेसिस में आपने बताया कि 4 वर्ड्स है?
because they are words. हर एक वर्ड के बाद एक space एग्जैक्टली spaces. हर एक एग्जैक्टली वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। हर एक वर्ड के बाद में स्पेस है। स्पेस इज समथिंग विच इज सेपरेटिंग वन वर्ड टू अनदर। इंग्लिश वर्ड में जब हम बात करते हैं इंग्लिश में लैंग्वेज में, तो स्पेस एक्ट एज ए डेलिमीटर। मतलब क्या करता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सेपरेट करने के लिए स्पेस होता है यूज, ये बाय डिफॉल्ट है। तो वैसे डेट फॉर्मेट में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हो, आप हाइफन यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर कभी यूज कर सकते हो, डॉट यूज कर सकते हो, कोलन यूज कर सकते हो, @ कर सकते हो। बेसिकली क्या कर रहे हो आप, उसमें डेलीमीटर यूज कर रहे हो ना। तो डेलीमीटर यूज करके अगर मैं उसका फॉर्मेट यही रखूंगा DDMMYY, तो बीच में कुछ भी हो, फॉर्मेट तो फॉर्मेट ही है ना, करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. अगेन दुनिया में आप देखोगे तो जैसे एक स्टैंडर्ड, अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी ऑफ राइटिंग लेट्स से डेट, तो आप देखोगे कभी भी MM DD और YYYY ये मैक्सिमम जगह पे यूज होता है। ओके कि मंथ डे और फिर ईयर। आप देखोगे अपने सिस्टम में भी, तो सिस्टम में भी आपको यही दिखेगा। सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दिस सिस्टम और दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज यूज्ड। ओके डेटा टाइप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉर्मेट इज यूज्ड। नाउ यही चीज आप देखोगे तो हमारा तो फॉर्मेट अलग है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अगर इस फॉर्मेट के हिसाब से जाऊंगा, पहला मंथ 8th डे और 2024 है, और वही चीज अगर मैं दूसरा फॉर्मेट में जाऊंगा जहां पे फर्स्ट डे और 8th मंथ हो जाएगा, मतलब दोनों चेंज हो गया। तो ऐसे केस में होता क्या है कि डेट जब हम यूज करते हैं, डेट फॉर्मेट जब हम वर्क करते हैं किसी भी डेट पर्टिकुलर कॉलम में, तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। We have to be very, very cautious because the data within this particular column may vary, may change, or may also depends on how the person has, let's say, entered in that cell. अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आज का डेट है 4 तारीख 4/07/2025, ये भी डेट ही है। अगेन 04:07:2025, ये भी डेट ही है। ओके देखो क्या हो गया, चेंज ये जनरल में चला गया। अब इसको मैं इसको क्या करता हूँ, देखो शॉर्ट डेट में करता हूँ। देखो शॉर्ट डेट में ऐसा आ गया, मतलब क्या है, लिखा मैंने डेट में लेकिन फिर इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है। तो होता क्या है, जब आप डेटा को एंट्री करते हो, कुछ भी चीज एंटर करते हो ना, तो एंटर करते समय हमेशा इस तरह के इश्यूज आपको मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। तो ये इश्यू को सॉल्व करने के लिए या फिर इस इश्यू को प्रॉपर करने के लिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट और डेटा टाइप में बहुत डिफरेंस है। जैसे अगर ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो चलो मैं अगर सबको यूनिवर्सल कर दूंगा कि भाई आपको डेटा टाइप आप जब एंटर करते हैं तभी हम बताते हैं लोगों को कि फॉर्मेट किस तरह चाहिए। तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट एंटर योर DD, देन एंटर योर MM, देन एंटर योर YYYY। तो उससे क्या होता है, कस्टमर जो भी एंटर करे समझ जाता है मुझे पहले डेट करना है, मंथ करना है, फिर ईयर करना है। या अदरवाइज आप कह सकते हो कि पहले MM DD एंड सो फोर्थ। मतलब आप डिफाइन करोगे तो वो वही डेटा फॉरवर्ड करेगा, वही डेटा इनपुट भी करेगा, और वही डेटा का आपका पूरा पैटर्न भी रहेगा। वो होता है आपका फॉर्मेट। लेकिन एंटर करते समय अगर आपने कुछ उसका डेलिमीटर को चेंज कर दिया, जैसे एक्सेल में हम जब भी एंटर करते हैं कुछ भी चीज, अगर वो डेट में है, ओके, तो 7 में जैसा डेट लिखा है वैसा लिख रहा हूँ, 7/4/2025। ओके देखो ये एंटर कर दिया, देखो यहाँ पे चेक करो, ओके यहाँ पे ये आगे देखो डेट फॉर्मेट दिख रहा है आपको। क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसका फॉर्मेट फॉलो होता है। ओके क्या फॉलो होता है, MM DD YYYY। इस फॉर्मेट में आप कभी भी एंट्री करोगे किसी के सेल में अंदर, किसी के सेल के अंदर में एक्सेल में, तो उसे डेट फॉर्मेट में वो कंसिडर कर लेगा, और वो डेटा टाइप भी अपने आप हो जाएगा ना। अब अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, चेंज इन द सेंस, लेट मी चेंज द डेलिमीटर। ओके सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे 7/4/2025। देखो ये भी हो गया डेट में, अगेन फॉर्मेट सही है तो उसने कर दिया। ओके लेट अस ट्राई अगेन 7। now I'll change the delimiter _4/2025. See here, though my format is right, though the format has been same, but the delimiter is changed. That's why my Excel, the details which I have presented in this Excel is been changed. देखो और दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, 7 डॉट जो नॉर्मल लिखते हैं 4.2025। ये देखो ये दोनों हो गए टेक्स्ट। क्या है ये दोनों भले ही वही फॉर्मेट है फॉलो, लेकिन टेक्स्ट हो गए। ऊपर जनरल दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, ये दो डेट फॉर्मेट है।
तो कभी भी ध्यान रखना, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको बहुत बार फेस करने पड़ते हैं। एग्री है? आपने किया भी होगा प्रोबेबली बहुत लोगों ने, करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके। कभी कभी डेट फॉर्मेट होने के बावजूद भी वो कुछ इस तरह से फॉलो होता है। देखो, टेक्स्ट कंसिडर करते हैं। क्यों? भले यहाँ पे डेट है लेकिन उसका डेटा टाइप टेक्स्ट कंसिडर कर लिया जाता है। अब उससे बोलोगे सर से होगा क्या? ठीक है, आपने ये प्रॉब्लम कहा, लेकिन उससे होता क्या, इशू होता है क्या? कुछ एनालिसिस में बहुत होता है भाई। देखो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका डेट है, मुझे इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे उसमें से मंथ को निकालना है। आपके उस इनपुट से मुझे मंथ निकालना है कि मंथ कौन सा है, ये जानना है। तो मैं एक फंक्शन यूज करूंगा, MONTH करके मंथ होता है फंक्शन, मैं यूज करूंगा, स्पेंड करूंगा, एंटर कर दूंगा। तो मंथ कौन सा है? 7। यस, विच इज करेक्ट। दो 4 इज इन बिटवीन, बट क्या है, बराबर उसने जानने की नहीं, 4 डेट है आपका भाई, मंथ ये है 7 है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट आपका वैसा है कि आपका फर्स्ट है फिर DD है। यहां पे भी चेक करते हैं। I'll copy this one and I'll paste it over here. देखो, ओके, देखो यहाँ पे भी आ गया, isn't it? यहाँ पे भी आ गया वो आंसर। अब ये चीज हम क्या करते हैं और नीचे लेके आते हैं, इन पे भी अप्लाई करके देखते हैं। दो जगह पे आपको नहीं मिलेगा, बाकी जगह में आपको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ये क्या है प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम? इज दैट this date format, though it is following the date format, but it is not a data type, it is having a general data. अब आप बोलोगे सर एक काम कर सकते हैं, फिर हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देंगे शॉर्ट डेट में। देखो, फॉर्मेट चेंज करने से, देखो यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करने से अगर आपका सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाता तो बहुत आसान होता, बट ये ऐसा नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज करने से नहीं होता है। जब तक सही में उसका डेटा टाइप या फिर डेटा टाइप भी, देखो आपने यहाँ पे चेंज किया, उससे कुछ आंसर मिला आपको? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज ऑल्दो इफ यू सी कि आपने यहाँ पे उसका फॉर्मेट चेंज किया जनरल से डेट में, बट उसका डेटा टाइप तो चेंज नहीं हुआ ना। अनटिल एंड अनलेस you create or you make the format in actual date format which system reads. सिस्टम ऐसे रीड करता है? नहीं करता है। तो आपको जब तक सिस्टम की तरह, उस सिस्टम में जैसा चाहिए उस तरह आप उसे चेंज नहीं करोगे, तब तक आपका डेट का एनालिसिस कुछ फायदा नहीं है। इट विल बी टोटली वेस्ट, एंड दिस टाइप ऑफ इश्यूज आर वेरी जनरली बीन फोकस्ड और इट्स बीन ऑब्जर्व्ड। तो इसको सॉल्व कैसे करें? इसके लिए इस तरह का इशू, जब आपका डेट का इशू होता है, तो एक्सेल ने एक डेट फंक्शन आपको प्रोवाइड कर रखा है। ओके, अब डेट फंक्शन कैसे वर्क करता है? देखो, इज इक्वल टू डेट, उसका नाम ही है डेट। ओके, डेट करना है। देखो उसमें क्या इनपुट है, ईयर, मंथ और डे। उसका फॉर्मेट उन्होंने डिफाइन कर रखा है, फिक्स कर रखा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स कर रखा है। अगर आपका एंट्री जो आप कर रहे हो, जो भी डेटा एंट्री कर रहे हो, उसका अगर फॉर्मेट ईयर, मंथ और डे इस फॉर्मेट में है, ओके, तो वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम डेट कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अभी मैं इसको एंटर करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और इसको करता हूँ एंटर। क्या बोलता है? यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। तो डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा मैं फंक्शन लगा दूंगा और एक्सेल का रेफरेंस दे दूंगा, हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। यू नीड टू प्रोवाइड 3 इनपुट्स, ईयर, मंथ एंड डे, देन ओनली इट विल वर्क। ओके, इसका मतलब क्या है? अगर आपका कोई इनपुट कुछ इस तरह से आपने इनपुट दे रखा है कहीं पे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसके बाजू में लिख देता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू डेट। कुछ इस तरह का इनपुट अगर आपका है और आपको इस इनपुट में से एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको एंटर करना पड़ेगा। एंटर क्या करना पड़ेगा? देखो, ईयर क्या है? 2025, कॉमा, फिर वहां पे क्या है आपका? मंथ 7 है, फिर कॉमा, फिर क्या है? 4। हाँ, अब ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया। लेकिन अब इसमें क्या हो गया प्रॉब्लम? भले ही आपका डेट में आ गया आंसर, अब देखो मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ इज इक्वल टू मंथ, तो आंसर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया है? ये तो मैनुअल वर्क हो गया ना भाई, मुझे हर बार अगर एंट्री ही करना पड़ेगा ऐसे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक ऑप्शन उसमें है कि आप इसे ड्रैग कर दो तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही फॉर्मेट इसका भी है, यही फॉर्मेट इसका भी है। चलो ठीक है, कर लेंगे, विच इज गुड। ओके, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सोल्यूशन हो जाता है, ये आपका ठीक है मेथड। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अगर ऐसे मल्टीपल, नीचे मैं कॉपी करता हूं, देखो यहाँ पे इसको मल्टीपल जगह पे लेके आता हूं ऐसे। ओके, ऐसे पेस्ट करते हो मल्टीपल जगह पे। ओके, कुछ नहीं करना है, आपने एक ही बार लगाना है और इसको सीधा इसे ड्रैग करना है, ड्रैग करना है। और दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे डबल क्लिक करो ऐसे, तो जहां तक आपका रिकॉर्ड है वहां तक आपको अपने आप वो चेंजेस करके दे देगा। ओके, तो करना एक बार है, बाकी का डिटेल्स आपका अपने आप यहाँ पे आ जाता है। ये चलो ठीक है, ये बेक हो गया। अब प्रॉब्लम कब आता है? अगर ये फॉर्मेट में चेंज है,
अगर ये फॉर्मेट ऐसा ना होते हुए अलग है, जैसे एक मैं और एंटर करता हूं यहाँ पे, इसको डिलीट करता हूं। लेट्स से द फॉर्मेट इज बीन चेंज्ड 4_7_2025। अब लिखते समय बंदे ने लिख दिया पहले डेट फिर मंथ, और अब ऐसे केस में तो क्या होगा भाई, पहले 4 हो जाएगा फिर 7 आ जाएगा, क्योंकि वो तो आपका एक फंक्शन है, फॉर्मूला है ना। वो तो क्या करेगा, जैसा आपने बताया वो तो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा जैसा आपने दिया है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये डिटेल्स, ओके, और उसमें भी क्या है, देखो आपने इनपुट क्या किया है पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ, जस्ट अब इट चेंज हो गया, ओके। मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, यहाँ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। मैं इसमें कल का डेट लिखता हूँ, 8.4 सॉरी 8 नहीं 5.7.2025, एंटर। देखो अब प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे आपने ये जो लिखा है मैन्युअली, ये इसको रेफरेंस में लेके लिखा था, करेक्ट। आपने उसका रेफरेंस तो कहीं नहीं दिया ना। आपने क्या देखा, इसको देखा आपने, इसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया और आप खुद ने टाइप किया है इस फंक्शन के अंदर में। उसका रेफरेंस नहीं दिया सेल का कि हाँ ये सेल से लो और ये करो। सो होता क्या है, जब आप इसको नीचे ड्रैग करोगे तो अगर सिस्टम ने पैटर्न निकाल दिया, पैटर्न भी निकाल सकते हैं हम कंट्रोल ई करके, फ्लैश फिल करके भी होता है, बट अगेन हम आगे उस पर बात करेंगे। बट अभी देखोगे तो ये प्रोसेस जो है, और ये प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, इट इज स्टिल कैरिंग 7 वैल्यू ओनली, 7 का ही दिखा रहा है, जो महीने का 4 डेट का ही दिखा रहा है, जहां पे जबकि 5 है, यहाँ पे तो 4 है। क्यों? जैसे मैंने आपको कहा था, ये आप मैनुअल एंट्री कर रहे हो। ये क्या है, ये मैनुअल एंट्री का है, यहाँ पे आपने किसी का सेल रेफरेंस नहीं लिया है। तो ये तो अगर हमारे पास में ठीक है, अभी चलो मेरे पास 2-3 है, लेकिन ऐसे अगर हजारों सेल होंगे तो हजारों थोड़ी मैं एंट्री वापस से एंटर करते बैठूंगा डेट को। तो अवॉइडिंग दैट हमारे पास में एक ऑप्शन होता है, हम सिर्फ डेट फंक्शन को अकेले यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, उसे कंबाइन करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, उसे कंबाइन करते हैं। नाउ लेट्स से आई शो यू ओवर हियर। कंबाइन करते समय मैं आपको दिखाऊंगा डेट फंक्शन। हेलो। हाँ बोला, यस बोला, ठीक है। तो डेट फंक्शन है, डेट फंक्शन के अंदर में हम लेफ्ट, राइट और मिडल, ओके, ऐसे 3-4 फंक्शन को हम कंबाइन करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। ओके, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को गाइस? नो सर, आ रहा है। ऑडिबल। आ रहा है सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो इनको कैसे यूज करना है अभी हम वो देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा फॉर्मेट इस तरह भी हो सकता है, फॉर्मेट इस तरह का भी हो सकता है, तो हैंडल कैसे करेंगे ऐसे केसेस को। ओके, तो देखो अब यहाँ पे लिखते हैं, चलो अब यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल टू डेट, डेट फंक्शन एक्टिवेट कर देते हैं। अब उसको क्या चाहिए, ईयर चाहिए। अब आपके इस सेल में आपके इस सेल में ईयर कहां पे है, लास्ट में 4 नंबर है जो ईयर को डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको प्रॉपर कभी भी लिखना है तो ऐसा 0 के साथ होना चाहिए, 0 एंड 0, दैट वुड बी बेटर। हाँ, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू डेट फंक्शन एक्टिवेट करता हूँ। डेट फंक्शन में पहला आर्ग्यूमेंट है आपका ईयर का। अब मैं डायरेक्टली यूज करूंगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि भाई इसमें से ईयर कौन सा है, डे कौन सा है, मंथ कैसा है, वो अपने आप नहीं निकाल सकता फंक्शन, तो मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट करने के लिए मुझे उसमें से बताना पड़ेगा सिस्टम, आप इस सेल में जाओ जो आपको मैं रेफर देने वाला हूँ, उस सेल के अंदर में लास्ट वाला जो पार्ट है, जो 4 डिजिट्स है 2025, वो आपका ईयर है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम, तो अपने पास में फंक्शन होता है राइट करके, राइट फंक्शन। राइट फंक्शन क्या करता है, जो भी आप टेक्स्ट दोगे, ये टेक्स्ट मैंने दिया है, जो भी आप टेक्स्ट देते हो उसका राइट साइड से, नॉर्मली हम कैसे रीड करते हैं, लेफ्ट से करते हैं ना, ये कहां से करता है, राइट साइड से करता है। राइट से क्या करो, आप 4 डिजिट ले लो, ये हो गया आपका ईयर। क्या हो गया आपका ये ईयर, मतलब क्या करेगा सिस्टम, फंक्शन क्या करेगा, डेट फंक्शन राइट को कहेगा भाई राइट मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप क्या करो, इस सेल के अंदर 817 दिया ना, तो A17 सेल के अंदर जाइए और क्या करो, राइट साइड से 4 डिजिट्स को ले लो। ओके, और उसे क्या करेंगे हम, कंसीडर ईयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉमा करते हैं, मंथ में आगे देखो। अब मंथ भी हम वैसे निकालेंगे। अब मंथ कहाँ है भाई, मंथ है आपका फर्स्ट पे, 07 पहले में ना, तो अभी राइट की जगह हम यूज करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट फंक्शन होता है। तो लेफ्ट फंक्शन कौन सा टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट है,
कॉमा, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है? 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर। देख सकते हो, देखो मंथ का 07 2 कैरेक्टर्स है, तो हमने 2 कैरेक्टर दे दिया। अब बात आती है डे की। अब डे है अपने मिडल में, अब मिडल से कैसे निकालेंगे? यस, जैसे आपने मिडल कह दिया, मिडल का फंक्शन भी है, तो हम करेंगे उसे मिड, मिड करके फंक्शन है उसे एक्टिवेट करेंगे। डेट मिड का हेल्प लेगा, कहेगा भाई इस सेल के अंदर में, ये जो सेल है रेफरेंस, इसके अंदर में जाइए, और मिडल में एक फंक्शन है। अच्छा, लेकिन मिडल कहाँ से? मतलब मिडल देखोगे तो 04 के बाद में जो अंडरस्कोर होता है वो भी उसके लिए मिडल है, 4 वो भी उसके लिए मिडल है, 0 और 5 के बीच में जो कुछ भी वैल्यू है वो सब मिडल ही है। तो कैसे जस्टिफाई करें? तो ऐसे केस में क्या है, देखो यहाँ पे मिडल में आपको टेक्स्ट में देने के बाद आपको 2 आर्ग्यूमेंट और पास करना पड़ता है, पैरामीटर। वो पैरामीटर कौन सा है? स्टार्ट कहां से करना है? अब आप देखो, आपको अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कहां से करोगे? देखो 1 2 3 4 है ना, फोर्थ जो है 0, वहां से मुझे स्टार्ट करना है मंथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। करेक्ट है? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं गाइस? Yes, sir. देखो Yes, sir. Yes, sir. 07_04_2025 है, मुझे क्या चाहिए? देखो ये मिडल वाला वैल्यू चाहिए, दिस वन। मैंने क्या कहा? मिडल वैल्यू को बताया। आप क्या करो, इस टेक्स्ट के अंदर जाइए, इस टेक्स्ट के अंदर में मुझे ये जो मिडल वाला 04 है वो निकाल के दो। अब ऑब्वियसली जब मैं मिडल को कहूंगा तो मैं उसका नंबर बताऊंगा ना कि कहाँ पे है वो एग्जैक्ट लोकेशन। तो लोकेशन कैसे पता चलेगा? मेरे कितने कैरेक्टर्स है देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कैरेक्टर्स है मेरे पास में। तो 10 कैरेक्टर में कौन से मेरे जो 2 कैरेक्टर चाहिए मुझे? ये 2 कैरेक्टर है, 4 और 5। करेक्ट है? सबको एग्री है? गाइस Yes, sir. ओके। Sir. अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यूज मिडल फंक्शन यूज करेंगे। मिडल फंक्शन, मिडल फंक्शन क्या करता है? आपके टेक्स्ट में से, जो आपने टेक्स्ट दिया है उसमें से 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट आपको पास करना पड़ता है। तो पैरामीटर कौन सा होगा? आप जो मिडल स्टार्ट करने वाले हो ना, क्योंकि मिडल तो देखो 6 भी मिडल है, स्टार्ट के इस 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी है वो सब भी मिडल है, मगर मुझे स्पेसिफिक मिडल चाहिए। तो हम क्या बताएंगे फंक्शन को कि आप क्या करो, टेक्स्ट में जाइए और जो आपका मिडल वैल्यू है कहां से स्टार्ट करो? फोर्थ से स्टार्ट करो। फोर्थ मतलब कहां से? ये 0 से स्टार्ट करो। ओके, तो हम क्या बताएंगे उसको? फोर्थ। भाई यहाँ पे मैं दूंगा 4 कॉमा 4, स्टार्ट करना कहां से है? ठीक है, तो क्या करेगा वो सिस्टम? 1 2 3 4, फोर्थ में जाके यहां से मिडल वैल्यू स्टार्ट करेगा। अच्छा, स्टार्ट यहां से करना है। कितने कैरेक्टर चाहिए? 2 चाहिए। कितने चाहिए? 2 कैरेक्टर। क्यों? अगर वो 04 ऐसा लिखा है और अगर यहां से आपका 4 स्टार्ट होता है, तो यहां से अगर आपका मिडल स्टार्ट होता है तो मिडल से कितने कैरेक्टर्स? तो मिडल से 1 और 2, कितने कैरेक्टर्स? 1 और 2, क्योंकि स्टार्ट यहां से करेगा ना काउंटिंग, फोर्थ से स्टार्ट करेगा, तो 4 से स्टार्ट करेगा तो 1 और 2 कैरेक्टर्स, सो 4 कॉमा 2। क्लियर है गाइस? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये हो गया आपका टोटल आउटपुट। देखो आपका आंसर मिल गया, और इसका देखो फॉर्मेट भी है और उसका डेटा टाइप भी यहाँ पे आपको डेट ही मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल आप लगा दो इसमें कोई फंक्शन इज इक्वल टू मंथ, लगा दो, आंसर इज इक्वल टू मंथ। अरे अच्छा, डेट है क्या ऊपर? इक्वल टू मंथ फंक्शन लगा दो। भाई जनरल आ जाओ। ओके, कौन सा है? 7 मंथ। आ गया आंसर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और अगर आपके आपके अगर अभी माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो वैल्यू आ रहा था अभी 7 लिखने के बाद में, ये क्या है ये? ओके, लेट मी टेल यू दैट आल्सो, बिकॉज ये भी अरे हमारे क्वेश्चन बहुत बार पसीना आता है। बहुत वहां पे दबा रहा हूँ मैं वाला। बाल जहाँ से गोड़वा में उतना बाल बा। ओके ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जैसे मैं कोई एक नंबर लिख दूं, लेट्स से 412625, ऐसे एक नंबर, एक रैंडम नंबर ले रहा है। ओके, ये रैंडम नंबर को जब मैं कन्वर्ट करता हूँ डेट में, तो देखो इस तरह से कुछ डेट आता है, और इस डेट को अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करता हूँ तो कुछ, या जनरल में तो कुछ इस तरह से नंबर आ जाता है। ये है क्या चक्कर? लेट मी टेल यू, द थिंग इज, आपका एक्सेल जो ना फर्स्ट डे काउंट करता है, फर्स्ट डे जहां से स्टार्ट कर रहा है। देखो मैं 0 लिखता हूँ यहाँ पे,
और इसको बोलता हूँ भाई इसमें डेट में कन्वर्ट कर दो ये, ओके। और 1 लिखता हूँ, उसको भी करता हूँ लेट से इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दो, ये देखो। तो ये कहाँ से स्टार्ट करता है देखो, अगेन फॉर्मेट क्या है आपका, MDYY। तो मंथ, डे और ईयर है। कहाँ से मंथ है, फर्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट डे ऑफ 1900। तो आप जब कभी भी देखोगे एक्सेल का जो ईयर कैलकुलेशन, डे कैलकुलेशन जो होता है, डे कैलकुलेशन मतलब क्या, आज आज कितना डे है, 4th डे, करेक्ट। महीने का एंड क्या होगा यहाँ पे, 30 या 31 होता है नॉर्मली, करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब इससे आगे अगर मैं बोलता हूँ मंथ का एंड नहीं करना है हमें, ईयर कैलकुलेट, ईयर में कितने डेज होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली 31 को यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे, 32 33 34 35 ऐसे करते करते कितना टोटल ईयर में 366 और 365 करके आपका टोटल डेज ऑफ ईयर होगा। अब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, आपने क्या कहा कि भाई मुझे टोटल 5 ईयर्स का कितने डेज हो गए ये चाहिए, तो ऑब्वियसली 365 को मैं थोड़ी बार बार 366 प्लस 3 ऐसे नहीं करते बैठूंगा। मैं क्या करूंगा, लेट्स से अभी 5 ईयर का आपने टोटल कहा है, तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से 2010 से अगर आपने कहा है 2010 से 2015 जो टोटल इसमें कितने टोटल डेज थे, तो मैं कैलकुलेशन करते मैं कैसे करूंगा, 2010 का फर्स्ट डे वहां मेरा फर्स्ट डे रहेगा, और 2015 का दिसंबर का लास्ट डे, तब तक मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू करते 365 पे नहीं रुकूंगा, 360 के बाद 365 366 के बाद में भी 367 368 369 चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, 2015 के दिसंबर 12 तक 31 तक, तब तक मैं पूरा काउंट करूंगा। तो जितना भी होगा वो पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा, एज ए डेज कंसीडर करूंगा। एक्सेल भी वही करता है। कहां से कर रहा है वो, 1900 से अभी तक का पूरा जितना भी डेज है सब डेज को काउंट करता है। और जब आप ऐसे रैंडम कोई एक नंबर पास करते हो तो वो क्या सोचता है, अच्छा इस नंबर का आपको जो आपने डे बताया वो कन्वर्ट करके देना है, ओके, डेट फॉर्मेट में। इसलिए फॉर एग्जांपल कभी आप अगर एक रैंडम नंबर, जैसे मैं क्या करता हूँ आज का, ओके 202, ये जो अपना डेट है, दिस पर्टिकुलर डेट, आई कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट ओवर हियर एज अ वैल्यू। देखो क्या दिखा आपको, मतलब इससे क्या पता चलता है आपको, आप आज के डे को 1900 से, कौन सा फर्स्ट 1900 का पहले दिन से अगर आप टोटल डेज कैलकुलेट करो, इतना आज का दिन में इतने डेज हो चुके हैं, 45,842 डेज हो चुके हैं। क्लियर है गाइस सबको? यस सर। Yes, sir. ओके तो वो नंबर वो वहां पे बताता है। हाँ अमर बोलो ना। यस अमर, आपका आवाज नहीं आ रहा। ओह सॉरी, जो अभी कैलकुलेशन किया था वो इसका था, लेकिन 5 तारीख का मई मंथ का अगर किया तो फिर वो ऐसे ही आ जाएगा क्या? मतलब कैसे है कि अभी जो सिलेक्टेड सेल है उसको तो फॉर्मूला लग के हो गया, लेकिन उसके बाजू का जो सेल है मई मंथ का, तो फिर उसका कैसे, उसके बाजू में तो 0507 तो है ही नहीं, तो फिर वो कैसे करेंगे? क्योंकि मोस्ट ऑफ डाटा रहते भी नहीं ऐसे, 0507 ऐसा रहता भी नहीं, तो फिर इस तरह इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये पूछ रहे हो हाँ ना? हाँ 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 ओके वो भी करेंगे, यस करते। देखो अब उसको भी कैसे करेंगे, देखिए अगेन हम वही करेंगे, डेट फॉर्मेट को यूज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के फॉर्मेट अलग है, हम एक ही फॉर्मेट सबको नहीं दे सकते, इजंट इट? तो इसके लिए आपको दूसरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके लिए मेथड सेम है, प्रोसेस बस चेंज क्या होगा, लेफ्ट राइट का थोड़ा आजू बाजू में चेंज होगा। जैसे इज इक्वल टू करता हूं मैं डेट, अब डेट फंक्शन एक्टिवेट करते ईयर, ईयर कहां पे से आ रहा है आपका, इस सेल में से आने वाला है ना, इस सेल में कहां पे है वो, लास्ट में है, तो मैं क्या करूंगा, राइट फंक्शन एक्टिवेट करूंगा। कहां से लेना है, इस सेल से लेना है, कॉमा कितना लेना है, 4 लेना है, ये तो चलो अपना काम हो गया, कॉमा। अब यहाँ पे मंथ, अब जैसे हमने कहा था मंथ यहाँ पे कहाँ पे है आपका, मंथ है बीच में, पहले हमारा कहा था वो लेफ्ट में था, अभी मिडल में, तो फंक्शन क्या होगा, चेंज, आफ्टर राइट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट इट विल टेक मिड, ओके मिड ले लेना है। कौन सा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, कॉमा। अब इसमें एक और चीज क्या है, आपको ये कंफर्म करना है, कॉमा नहीं, हाँ आपको क्या कंफर्म करना है इसमें, कि जो मिडल वैल्यू है 5.7, क्या है 5.7, अभी वो थर्ड से चालू हो रहा है और एक ही टेक्स्ट है, थर्ड से चालू हो रहा है और कॉमा क्या है, एक ही टेक्स्ट है, ये फॉर्मेट हमेशा रहेगा उसमें, ये चेंज नहीं होगा उसमें। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब कभी भी ये मेथड यूज करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके डेट
डेट के कॉलम में किस तरह का फॉर्मेट रखा है। अगर फॉर्मेट ऐसे अलग अलग है तो आपको सेपरेटली एक्टिवेट करके फिर उसे यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ओके। बट सर अगर हमारे पास एक ही कॉलम है, जैसे आपने बोला था कि मोर देन 1000 टाइप्स है, मतलब डेट के मोर देन 1000 ट्रांजेक्शन है, तो फिर हर एक को पर्सनली चेक करना तो इम्पॉसिबल है ना। देखो, अगर आपका फॉर्मेट सब जगह यही है, ओके, अगर यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट सब जगह, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू ड्रैग ऑन या फिर डबल क्लिक कर दो, अपने आप वो कर देगा फॉलो। करेक्ट? और अगर मतलब फॉर्मेट सेम ना हो तो? वो तो करना ही पड़ेगा ना, फिर उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू दैट। क्योंकि देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, देखो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, जैसे 2 ऑफ मार्च, ओके, 2025। अब ये 2 मार्च है, इसलिए चलो ठीक है, या हमारा रीड करने का तरीका है कि हम डे एम और वाई वाई करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या किसी और को या फिर फॉरनर किसी और बंदे को जहां पे जिनका फॉर्मेट एम डी वाई है, तो वो कैसे रीड करेगा, उसे कैसे पता चलेगा? क्या करना चाहिए उसने, बताओ? इसके लिए क्या दिया, देखो सोल्यूशन, अगर इस तरह का है ना कॉलम, कभी भी होता है, तो इसके लिए उन्होंने एक सोल्यूशन दे रखा है। आपको क्या करना है, फॉर्मेट मेंटेन करना है। ओके, इसीलिए फॉर्मेट अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड ना। तो जो भी आपका डेट का डेटा होता है, ऐसे डेट में आना है, यहाँ पे से वो फॉर्मेट चेंज करना है। हियर वी आर चेंजिंग द फॉर्मेट। तो कस्टम फॉर्मेट है या कोई भी, वो डेट मेंटेन कर दो। जैसे अगर यहाँ पे है ये, अब ये कौन सा है, देखो डे, सॉरी, मंथ, डे और 2000, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मंथ है, ये डे है और ये ईयर है। ये फॉर्मेट जैसे आप अप्लाई करोगे, वो पूरे के पूरे कॉलम में लग जाएगा। करेक्ट है गाइस? यस सर। यस तो सर। फॉर्मेट sir, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा अपने आप। ओके, ठीक है। दिस इज वन ऑफ अ प्रॉब्लम दैट, और लेट्स से वन ऑफ अ इशू दैट वी नॉर्मली फेस, और उसका सॉल्यूशन भी बताया। दूसरा, अब क्या होता है, हाँ बोलो, हाँ हाथ ऊपर किया था। हाँ सर, जो अभी आपने सेल के कॉर्नर में सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, तो जब तक वो डाटा है तब तक ही सिलेक्ट ये होता है क्या, सिलेक्ट होता है क्या? अच्छा, जैसे मतलब अगर मैं कोई हाँ यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ तो ऐसे डबल क्लिक करता हाँ हूँ तो जहां तक डेटा, हाँ हाँ यस यस, जहां तक आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई यहाँ पे फंक्शन लगाया और मैंने हाँ डबल क्लिक किया ना, तो जब तक मेरा डेटा रहेगा तब तक अपने आप वो पूरा ले लेता है, ओके, बाय डिफॉल्ट। लेकिन कहाँ तक लेगा, जहां तक डेटा, अगर बीच में से गैप आ जाएगा ना, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसे जस्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये भी जरूरी पार्ट है, आपने अच्छा पूछ लिया। मैं क्या करता हूँ, देखो इसका मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू, लेट्स से स्क्वायर रूट निकालना है इन नंबर्स का, जरूरत नहीं है बट जस्ट शोकेस, स्क्वायर रूट निकालना है, इसका निकालना है, एंटर कर देता। तो देखो, अब ये मैंने फंक्शन तो लगा दिया, अब मुझे क्या करना है, पूरे डेटा सेट के लिए चाहिए ना। तो मैं सिर्फ इस पे क्या करूंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे जो मेरा कर्सर है उसका जैसे शेप चेंज होता है, ये जो कर्सर है यहाँ से चेंज होता है, यहाँ पे इसमें डबल क्लिक कर दूंगा, इसे कहते हैं फिल हैंडलर। ओके, वो फिल हैंडलिंग पे आ जाता है इस कर्सर से, तो अपने आप लग जाएगा। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ये होता है प्रॉब्लम, अगर बीच में डेटा नहीं है तो क्या करेगा, वहां तक ही जाएगा। ओके, तो यू हैव टू मेक श्योर कि लास्ट तक गया है, नीचे तक जाए। ओके, वो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू सर। ओके, अब उसके लिए भी सोल्यूशन है, ऐसे नहीं कि नहीं है, कि उसको हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डेटा बहुत ज्यादा होता है, बीच में मिसिंग वैल्यूज वगैरह होते हैं, तो ऐसे केस में क्या करना है, किसी भी कॉलम के अंदर में जाके कभी भी चेक करना है कि वहां पे मिसिंग वैल्यूज है क्या, उस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है क्या। तो उसके लिए क्या है, देखो इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक करके फंक्शन है, काउंट ब्लैंक, उसे एक्टिवेट कर दो और रेंज दे दो इस तरह से। अगर ब्लैंक नहीं है तो ऑब्वियसली 0 रहेगा, और अगर ब्लैंक है तो आपको उसका काउंट मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। और एक्सेल का सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि इस डेटा में मेरे पास में ब्लैंक नहीं है, लेकिन लेट्स से कि यहाँ पे ब्लैंक हो गया। ओके, अब ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पे ऐसे उसका रेंज दूंगा,
कंट्रोल करके ऐसे या फिर ऐसे करके मैं जब सिलेक्ट करूंगा ऐसे, तो ऑब्वियसली मुझे पता चलेगा, क्योंकि एक ही क्लिक में नीचे तक नहीं आया मतलब बीच में कहीं रुका है, मतलब वो है ब्लैंक। बट इसके लिए नहीं है यूज हो। एक्सेल में क्या होता है, कभी भी हम जब कोई भी फंक्शन फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो एक माइंड में लॉजिक जरूर होता है कि मुझे हर जगह पे वो फॉर्मूला अगर सेम प्रोसेस वही अगर फॉलो करना है, तो मुझे बार बार उसे एंटर ना करना पड़े। बार बार एंटर करना ना पड़े मतलब, अब जैसे मुझे चेक करना है कि इस कॉलम में ब्लैंक वैल्यूज है क्या और है तो कितने हैं, तो इज इक्वल टू काउंट फंक्शन मैंने लगा दिया और ये मैंने उसका सेल का डिटेल्स दे दिया, जैसे यहाँ पे ये दे दिया। अब मेरा लॉजिक क्या है, देखो, when I have applied this particular function count a blank function, so I have looked over all the data and if there is any value मुझे मिल जाए। बट यही लॉजिक मुझे बाकी कॉलम में भी करना है। तो आपको क्या लगता है कि मैं हर बार एक सेल में आऊंगा, फिर से रेंज सेलेक्ट करूंगा, फिर इसमें आऊंगा, फिर ये कोई प्रोसेस नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, सिंपली इस फंक्शन को सीधा ड्रैग कर देते हैं इधर तक। अपने आप एक्सेल क्या करता है, सेल रेफरेंसेस, इस फंक्शन के लिए उसने ये रेफरेंस लिया है तो इस फंक्शन के लिए वो ये रेफरेंस लेगा, इस फंक्शन के लिए ये रेफरेंस लेगा। ये पैटर्न अपने आप एक्सेल फॉलो कर देता है। सो इट्स मेक्स अस वेरी इजी फॉर अस टू जस्ट सिंपली क्लिक एंड ऐसे सिलेक्ट करना है, ऐसे ड्रैग कर देना है। आ गया आंसर, देखो ये 1 आ गया, एक गैप है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। अब हाँ, अब जैसे था फर्स्ट, जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई डेटा टाइप डिफाइन करना बहुत जरूरी है, सही होना चाहिए। जैसे अगर कोई न्यूमेरिकल डेटा है, मैं इसको क्या करता, देखो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता, ओके, और मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, मुझे चाहिए उसका सम इज इक्वल टू सम चाहिए। ओके, तो मैं अभी इसके लिए मैं पूरा डेटा दे दूंगा, ऐसे ही सिलेक्ट कर दूंगा ये वाला और एंटर कर दूंगा। क्या हो गया भाई? F2 F11, अच्छा एक ज्यादा आ गया। आप तो 34 आंसर आ गया। ओके, अब जब आप इसे टोटल करोगे, ऐसे इस तरह से टोटल करोगे, तो आपको यहाँ पे देखिएगा, देखो ये सम है 34 का और एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, एक्चुअल में 37 आना चाहिए था। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन और इट्स बिकॉज ऑफ सम नेग्लिजेंस, this data was left out or it's this data type has been changed from numbers to text या general। और ये प्रॉब्लम कब होता है, देखो जब आप ये डेटा से, फॉर एग्जांपल ये डेटा आपने एक्सेल में बनाया है, आप इसे सेव कर रहे हो, किसी को शेयर कर रहे हो, तो कैसे करोगे, सीएसवी फॉर्मेट में सेव करते हो ना, किया होगा ना कभी किसी को शेयर सीएसवी फॉर्मेट में, गाइस। Yes, sir. Yes, sir. तो एक ऑब्जर्वेशन जरूर करना कि जब भी आप कुछ भी शेयर करते हो ना, उसमें फॉर्मेट ना फंक्शन कुछ भी नहीं रहता, सब के सब चीज को जनरल कर देता है, भले वो टेक्स्ट हो, डेट हो, कुछ भी हो, सबको जनरल कर देता है और तभी जनरल करके ही भेजता है। तो अगर कोई भी टूल उस सीएसवी से इंटरप्रेट कर रहा है डेटा को, उस सीएसवी से डेटा को इंटरप्रेट कर रहा है, तो उसमें चांसेस बहुत होते हैं कि गलत होने के। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? सबको क्लियर हो रहा है कुछ? Yes, sir. हाँ, तो इस तरह का सिनेरियो होने के चांसेस आते हैं। ओके, इंटरप्रेट करते समय गलत हो गया या देते समय डेटा का जो उसका डेटा टाइप है वो चेंज हो गया। अब ऑब्वियसली मुझे तो 34 आंसर मिला है। सिर्फ सम ही नहीं, बाकी क्या कैलकुलेशंस इज इक्वल टू एवरेज। देखो आप एवरेज ले लो, एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज 4.25 आया है। ओके, एक्चुअल में कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए था। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे वैसे चेंज ना करना पड़े, है ना। इस तरह से इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। देखो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। जहां पे सम आना चाहिए था 37, वहां पे 34 आ रहा है। जहां पे एवरेज आना चाहिए 4.5, वहां पे 4.25 आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप एनालिसिस करोगे, जो फर्स्ट बिजनेस मोमेंट हमें बताता है कि हम कभी भी बिजनेस को, जैसे अब यहाँ पे सेल्स का हम एनालिसिस करेंगे, हाउ सेल्स इज परफॉर्मिंग, तो ऑब्वियसली एक मेरा एवरेज रहेगा, उसके ऊपर नीचे देखूंगा मैं कितने ऊपर है, कितने नीचे है, कितना दूर है, कितना। तो अगर मेरा एवरेज ही गलत हो गया तो ऑब्वियसली मेरा एनालिसिस तो गलत होगा ना। करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So you have to make sure
कि डेटा टाइप सबका जो है, जो होना चाहिए, जो है नहीं मतलब जो होना चाहिए वो आपको कंफर्म करना होता है कि वो है कि नहीं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल एट इनिशियल पार्ट. नाउ द नेक्स्ट इश्यू दैट यू मे फेस आर डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट डिटेल्स. चलो कैसे करेंगे डुप्लीकेट डिटेल को हम फाइंड आउट, और कैसे उसको हैंडल करेंगे, चलो बताओ. यस गाइस चलो. डेटा में जाके सर डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करेंगे. कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाके. ओके, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे. पहले मैं डेटा सेलेक्ट कर दूंगा, डुप्लीकेट, करेक्ट. हाँ सर, डुप्लीकेट वैल्यूज, हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाँ, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज. ये डुप्लीकेट वैल्यूज है, देखो इतने सारे. ये चाहिए आपको इस तरह से. ऐसे आंसर चाहिए था क्या? दिस इज इट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग? नो सर, No, वी No, कैन sir. यूज कॉन्कैट फीचर. नो सर. कॉन्कैट यूज करना पड़ेगा सर उसको. हाँ, वेरी गुड. So the answer what they said is you need to concat it. See, हमें एक हमारे पार्टिसिपेंट ने एक और चीज बताया, एक और हाईलाइट किया था उन्होंने पार्ट, कि इसको सेलेक्ट करना है, डेटा में जाना है, सॉरी डेटा में जाना है और यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव कर देना है. ओके, तो आपको क्या पता चलेगा, देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो. यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिस्टम भी वही फॉलो करता है. ओके, ये क्या कर रहा है, देखो ये डेट कॉलम में जाता है, प्रोडक्ट में जाता है, कैटेगरी में जाता है, रीजन में जाता है, सेल्स में जाता है, यूनिट में जाता है, सेल्स पर्सन और एस करके जो हमने एक नया कॉलम किया है उसमें जा रहा है. हर एक कॉलम में जा रहा है, हर एक कॉलम में चेक करता है. और क्या चेक करता है, जैसे हमारा प्रिंसिपल बताता है, डुप्लीकेट वैल्यू हम कब उसे कहते हैं डुप्लीकेट वैल्यू है करके, जब आपका हर एक वैल्यू, जैसे अगर डेट है, डेट का डेट सेम नीचे आए, लैपटॉप का लैपटॉप सेम नीचे आए, इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक सेम नीचे आए, नॉर्थ का नॉर्थ, मतलब क्या है, हर एक वैल्यू किसी भी एक रिकॉर्ड में हर एक वैल्यू अगर सेम टू सेम नीचे अगर रिपीट होती है तो ही उसे हम डुप्लीकेट कहते हैं. अदरवाइज एक भी वैल्यू चेंज होता है तो डुप्लीकेट नहीं होता है. करेक्ट है, सबको पता है ये तो? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. तो ये जो प्रोसेस है रिमूव डुप्लीकेट, ये यही फॉलो करता है. वो भी यही कर रहा है, डेट में जाके हर एक चीज में क्या कर रहा है, हर एक कॉलम को रेफर करते हुए चेक करता है कि क्या मुझे इन कॉलम को रेफर करके ही करना है ना, तो वो चेक कर रहा है क्या सेम वैल्यू है, अगर है तो डिलीट करेगा ना. यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि डायरेक्ट वो डिलीट कर देता है, वो आइडेंटिफाई नहीं करता है. और हमारा प्रोसेस कभी भी कैसा होना चाहिए, फर्स्ट आइडेंटिफाई, वी नीड टू फर्स्ट ऑलवेज आइडेंटिफाई एंड देन वी नीड टू ट्रीट इट. इसे डिलीट करो, क्या करो, देन आफ्टर वी हैव टू ट्रीट इट. We cannot simply, or let's say we cannot directly treat. We have to first identify. हॉस्पिटल में जब आप जाते हो डॉक्टर के पास, आपको डायरेक्ट इंजेक्शन लगा देते हैं क्या डॉक्टर, या पहले चेक करते हैं? चेक सर. चेक करते हैं ना सबको. ऐसा हुआ है क्या कभी यस सर. कि आप गए हॉस्पिटल में, चलो आ गया भाई लगाओ इंजेक्शन, ऐसा कुछ है, हुआ कभी? नो सर. नो सर. यस उसका सर. उसका रीजन भी है. उसका रीजन क्या है, देखो वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स. Identifying the problem will make you, let's say, more capable to take a proper measure or to proper, let's say, treat over there, treatment for that. Otherwise क्या होगा, हमको पता है कि हमको डिलीट ही करना है, बट डिलीट करने के बजाय हो सकता है कि भाई उसमें डेट गलत हो, किसी का हो सकता है कि अरे ऑर्डर आईडी गलत लगा दिया हो सकता, बहुत सारी चीजें उसकी पॉसिबिलिटीज हैं. तो why are you going directly for the delete, or let's say why are you simply deleting that instead of first checking? So we have to first always evaluate, verify or identify, and then we have to take the further step. अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करके होम में जाके कंडीशन फॉर्मेटिंग करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, विच विल नॉट वर्क. उसके लिए सोल्यूशन एक है जो बताया है, कॉन्कैट करके करना पड़ेगा. तो कॉन्कैट करके फंक्शन है एक्सेल में, इज इक्वल टू CONCAT, कॉन्कैट करके फंक्शन है. कॉन्कैट करने से क्या होता है, जितने भी टेक्स्ट है ये पूरे टेक्स्ट को आप दे दो. ये अभी 2017-16 के बाद में, प्रोबेबली 13 के बाद में आपके पास ये फंक्शन आया. उसके पहले कौन सा फंक्शन था, आई डोंट रिमेम्बर, कंबाइन या उसमें भी कॉन्कैट था, बट वो थोड़ा अलग काम करता था. ओके, वहां पे आपको एक एक टेक्स्ट देना पड़ता था. याद है, करेक्ट है? जिसको कुछ अगर पुराना उन्होंने यूज किया है तो गाइस, ये कॉन्कैटिनेट. ओके, ये जो कॉन्कैटिनेट है ना, पुराना वाला कॉन्कैटिनेट जो पूरा है, यहाँ पे आपको ऐसे पूरा रेंज नहीं दे सकते. ऐसे देखो, ये रेंज दोगे ना, ये देखो ये नहीं कर पाएगा. ओके, इट विल नॉट वर्क आउट, ये नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे क्या होता था,
कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज करने के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ऐसे टेक्स्ट ये कॉमा 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 ये ऐसे करके देना पड़ता था। ओके, कॉन्कैटिनेट के लिए करता वही प्रोसेस था बट ऐसे करना पड़ता था। सो अगेन पुराने वर्जन्स के लिए ऐसे हो सकता है, तो ध्यान रखना। बट अभी के लिए एक्सेल में क्या हो गया है, कॉन्कैट करके डायरेक्ट फंक्शन लगा दिया है, वहां पे आप रेंज दे सकते हो, ऐसा करके रेंज दे दो, डायरेक्ट हो जाएगा। अब कॉन्कैट करने से होता क्या है, अच्छा एक और चीज जिसमें मैंने अभी शॉर्टकट किया, इस फंक्शन को लगा दिया, इस फंक्शन को ये जो पूरा हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया है इसको पूरे सेल्स में एक्टिवेट करने के लिए, पूरे रिकॉर्ड में एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको लगाने के बाद सेलेक्ट करने के बाद सेल्स में राइट साइड कॉर्नर में आता हूँ, मेरा जो कर्सर है वो चेंज होता है, देखो इस हैंडल में, और उसको डबल क्लिक करता हूँ तो अपने आप पूरे के पूरे सेल को लग जाता है, और जितने रिकॉर्ड्स हैं मिलते हैं उसी के साथ में वो काम करता है। ओके, सो इट विल टेक ऑल दैट। बट इंस्टेड ऑफ दैट दूसरा ऑप्शन भी होता है हमारे पास में, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसे नीचे तक आता हूँ, कंट्रोल डी, क्या दबाता हूँ, कंट्रोल डी, फॉर्मेट डाउन। फॉर्मेट डाउन मतलब जो भी आपने यहाँ पे लिखा है उसका पूरा का पूरा सब चीज, फंक्शन, फॉर्मेट, उसका लिखने का तरीका, फॉन्ट वगैरह, जो आपने कैलकुलेशन किया है, रेफरेंसेस, सब के सब नीचे एग्जैक्टली कॉपी हो जाते हैं। वैसे ही आप इसे क्या कर सकते हो, राइट साइड में भी कर सकते हो और डाउन में भी कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट और अप नहीं कर सकते। ओके, सो कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डी इज देयर, बट कंट्रोल एल एंड कंट्रोल यू इज नथिंग देयर। ओके, डोंट यूज फॉर दैट। Once you have this concatenated, now instead of taking a reference of whole the data, you already have this, isn't it? So select only this column or this particular data and go over here. This is how you will understand. This is something what you can easily now predict it. You can highlight it. Clear है guys सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये तो चलो हो गया अपने कॉलम के, रो के बेसिस में। कॉलम के लिए क्या करेंगे बताओ, चलो। Correlation. वेरी गुड। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू CORR। किसका करूंगा देखो, बताओ अभी कैसे करूंगा। कोरिलेशन फंक्शन एक्टिवेट कर दिया है, क्या बोलता है देखो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, कोरिलेशन सेलेक्ट कर, कौन सा, A2 to 18। डेट का A2 कॉलम, ओके, हाँ ले लिया, फिर प्रोडक्ट So का, sales. कॉमा प्रोडक्ट, ओके। ये क्या है आंसर, Sir, only it works on numeric data. एग्जैक्टली, बहुत सही पकड़े हैं। ओके, ये न्यूमेरिकल डेटा को ही वर्क करता है कोरिलेशन। ओके, कोरिलेशन डज नॉट वर्क ऑन कैटेगोरिकल डेटा, प्लीज रिमेंबर इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या पता आपको ऐसे कोई इंटरव्यू में ट्रिक करने की कोशिश करेंगे, ओके तो मेक श्योर कि उसे समझो। तो न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है देखो आपके पास में, ये डेटा है, कॉमा ये डेटा है, यस इसको आपको मिलेगा आंसर। अरे क्या लिखा मैंने, ओके ये इसका कोरिलेशन। अच्छा मुझे बताओ, ये है ठीक है, एक और है ना हमारा। अब मैं इस पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सफिस्टिकेटेड वे में करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल कॉलम कौन से, सेल्स है, यूनिट सोल्ड है और एस करके कॉलम, ये तीनों ही हमारे पास में। लेट अस फाइंड आउट कि क्या मिलता है। तो रिलेशन कैसा होना चाहिए, सेल्स का, और यहाँ पे सेल्स है ना, फिर उसके बाद में ये क्या हो रहा है भाई, लगता है कुछ लगाया मैंने इसमें, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। सेल्स, फिर उसके बाद में यूनिट सोल्ड, एंड देन एस, सेम हियर। और देखो अगर आपका कुछ ऐसे हिस्टोरी हॉरिजॉन्टल डेटा आपने ऐसे लिख रखा है, ओके इस तरह से, आपको वर्टिकल में चाहिए तो वो भी कर सकते हो। जो आपने कॉपी कर दिया, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे से सेलेक्ट कर दो, जहाँ पे भी आपको चाहिए, या फिर जो एक सेल चाहिए यहाँ पे कर दो ऐसे। और आपको क्या करना है, पेस्ट का जो ऑप्शन होता है, ओके उसमें स्पेशल पेस्ट भी होते हैं,
कंट्रोल शिफ्ट जी करके भी होता है, बट अगेन शॉर्टकट के बजाय ऐसे भी जाओगे तो इस तरह से। तो देखो आपको ऑप्शन आता है ये ट्रांसपोज, इस पे क्लिक कर दो, ये देखो जो आपने यहाँ पे लिखा था हॉरिजॉन्टल आपको वर्टिकल में भी मिल जाएगा। ओके, सेम जो वर्टिकल में लिखा है आपको हॉरिजॉन्टल में करना है तो कर सकते हैं। कैसे करोगे? अगेन आपको जो भी आपने लिखा है इसे कॉपी, जो भी जहाँ पे मल्टीपल सेल्स में ना, ऐसे ये सेल्स में कॉपी करना है, पेस्ट जहाँ पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए आपको, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो मुझे लेट्स से यहाँ पे चाहिए, ऐसा चाहिए है ना, तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा। इसको आता हूँ यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, शॉर्टकट की है देखो कंट्रोल ऑल्ट वी, नोट सॉरी कंट्रोल शिफ्ट जी नहीं है, कंट्रोल ऑल्ट वी है। ओके, उसको शॉर्टकट की है, वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी आ सकते हो और यहाँ पे ट्रांसपोज करके ओके कर दो, देखो ऐसा आ जाएगा। ओके, तो दिस वे यू कैन कन्वर्ट एनी वैल्यू फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस में कर सकते हो कन्वर्ट। ओके, नाउ हमने ये क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। द थिंग इज वी आर क्रिएटिंग दिस टेबल टू आइडेंटिफाई, बिकॉज हमें क्या करना है जब हम कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो सेल्स का कोरिलेशन सेल्स के साथ में, सेल्स का कोरिलेशन यूनिट सोल्ड के साथ में, सेल्स का कोरिलेशन एस कॉलम के साथ में, ऐसे करेंगे ना, करेक्ट है ना? यस गाइस सर। करेक्ट है कि नहीं? देखो सेल्स का जो डेटा है उसका कोरिलेशन मैं यूनिट सोल्ड के साथ में करूंगा, सेल्स का कोरिलेशन एस के साथ में करूंगा, करेक्ट? वैसे ही एस का कोरिलेशन यूनिट सोल्ड के साथ में, एस का कोरिलेशन मतलब क्या है, जो भी कॉम्बिनेशन हम क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में कर रहे हैं। तो सेल्स का सेल्स के साथ में, सेल्स का यूनिट सोल्ड के साथ में, सेल्स का एस के साथ में, वैसे यूनिट सोल्ड का सेल्स के साथ में इसका, और ऐसे एस का ऐसे। तो जब हम ऐसे कैलकुलेशन अभी करेंगे तो आपको याद होगा, देखो हमने एक टेबल बनाया था, मल्टीप्लीकेशन टेबल, याद है आपको? असाइनमेंट में दिया था। Yes, sir. Yes. यस तो यहाँ पे क्या है, हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। अब कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन व्हाट, सॉरी सी ओ डबल आर, कोरिलेशन बिटवीन दिस एरे, करेक्ट, कॉमा टू दिस एरे, ये आपका आंसर है। अब ये आंसर जो है हमें कैसे चाहिए, व्हेन आई एम कमिंग डाउन, व्हेन आई एम ड्रैगिंग डाउन, हाउ शुड इट बी, इट शुड बी, अच्छा ये किसके साथ हो गया, सॉरी एक डेटा इज इक्वल टू, उसके साथ में कर रहे हैं ना, कोरिलेशन बिटवीन दिस कॉलम कॉमा दिस कॉलम ओनली, कॉमा दिस कॉलम ओनली, एंटर। ये वन ही आना चाहिए, बिकॉज सेल्स के साथ में सेल्स करोगे तो ऑब्वियसली वन ही आएगा। अब हमें क्या चाहिए, सेल्स का यूनिट सोल्ड के साथ में, सो इसका और इसका रिलेशन चाहिए, इसका और इसका चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू सी ओ डबल आर, को रिलेशन बिटवीन दिस कॉलम कॉमा, टाइपिंग दिस कॉमा दिस, ओके ये आंसर आएगा। सेम यहाँ पे आना चाहिए। अब लिखने के बजाय मुझे क्या चाहिए, सिस्टम ने खुद ब खुद आगे जाना चाहिए इसे। मेरे इसमें क्या है, हर समय सेल्स कांस्टेंट रह रहा है, चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, नेक्स्ट टाइम में कांस्टेंट ये रह रहा है, चेंज ये और ये हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिस्टम प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स से एस को मैं ऐसे टाइप नहीं करूंगा, मैं इसे ड्रैग ही करूंगा। तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम, सो वी हैव दिस ऑप्शन वेयर सेल्स इज कांस्टेंट, दिस सेल्स कॉलम, तो मैं सेल्स का जो है अपना एरे है इसको कर दूंगा लॉक। ओके, लॉक कर देंगे, ये मूवमेंट हो रहा है ना, इसे होने देंगे। ओके, इसे करते हैं हम, लेकिन इसका कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ठीक है ये हो सकता है यहाँ पे आना चाहिए था, हाँ ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बस प्रॉब्लम देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा ना, ये नहीं चाहिए था बीच में। ठीक है, आपको समझ में तो आ गया। लेट्स से if I take this control X, एक सेकेंड, कांस्टेंट G2, हाँ दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है। ओके, अभी देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको उठाता हूँ, अभी देखो फॉर्मूले में क्या बोलता है, ये दोनों रेफरेंस है,
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको उठाऊंगा और इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दूंगा। देखो अल्टीमेटली क्या हो गया अपने आप, देखो इसने इसको कवर कर लिया। क्यों? मैंने इसको कर दिया फिक्स, इसको कर दिया है मूवमेंट, या इसको क्या है रेफरेंस रखा है, ताकि जब भी मैं चाहूँ तो सेल्स के साथ में मैं सबको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सेल्स का सेल के साथ में सेल्स का, यूनिट सोल्ड के सेल का इसके साथ में। अब मैं क्या करूंगा, यूनिट सोल्ड को करूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब मैं कोरिलेशन लगाऊंगा इज इक्वल टू CORR, कोरिलेशन लगाऊंगा, तो यूनिट सोल्ड है ना, यूनिट सोल्ड किसके साथ, सेल के साथ, सेल्स का कॉलम, इसको कवर करूंगा कॉमा। ना जब मैं यूनिट सोल्ड का डेटा लूंगा तो यहाँ पे इसको कर दूंगा लॉक, एंटर कर देता हूं। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रैग करता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, क्या गलती हुई मेरे से अभी, E2 6 नहीं है, P2 6 है, ये ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हाँ दोनों वैल्यू की सेम है, गलती नहीं है, इट्स ओके, करेक्ट है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट सोल्ड और यूनिट सोल्ड का तो चलो लाजमी है एक होना, क्योंकि वैल्यू सेम है, लेकिन एस में भी आपको वहीं पे मिल जाता है। अरे कोरिलेशन इसका भी सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यूनिट सोल्ड और एस का कोरिलेशन, यूनिट सोल्ड और एस का कोरिलेशन आ रहा है 1। तो जहां कहीं पे भी कोरिलेशन 1 या उसके करीब आता है तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं गाइस, वेरिएंस, Strong. जीरो वेरिएंस। जीरो वेरिएंस। जीरो वेरिएंस Duplicates. कैसे? हाँ क्या कहते हो उसे? Strong. Exactly. Strong Strong. correlation. Yes, strong correlation is nothing but it is indicating to duplicate column. करेक्ट है ना? Yes, sir. कुछ रिवीजन में आ रहा है, याद में कुछ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो जहां अब देखो यूनिट सोल्ड और यूनिट सोल्ड के बीच में, जैसे मिरर के सामने अगर आप खड़े हो तो दोनों के बीच में कोरिलेशन 1 होना एक्सेप्टेबल है, मगर किसी और कॉलम के साथ में अगर सेम आपका कोरिलेशन है या फिर उतना आपका आ रहा है तो बीच ऑब्वियसली भाई देख सकते हो ना 3 3 5 5 2 2, ये क्या बताता है, दोज आर डुप्लीकेट कॉलम्स। क्लियर है? Yes, sir. ओके तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके इस तरह से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप ये भी आपको बनाना आएगा, ये कोई इशू नहीं है, अभी तो क्लियर हो चुका क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया है, तो दिस इज बैक ऑफ योर हैंड, इट वोंट हैव एनी इशू। एम आई राइट विद एवरीवन? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के बाद में नेक्स्ट क्या आता है गाइस? हेलो, गाइस डुप्लीकेट के बाद में क्या है? अरे क्या बता नहीं रहा, क्या हो गया भाई? वो डुप्लीकेट Missing values. को कैसे ट्रीट करना है? हाँ डुप्लीकेट वैल्यू को Missing value. मिसिंग वैल्यू, अच्छा मिसिंग वैल्यू, अच्छा उसका मिसिंग वैल्यू, ओके। तो अभी ये बात आती है अपनी मिसिंग वैल्यू का। ओके नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई मिसिंग वैल्यूज। तो अब मिसिंग वैल्यू को पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इजंट इट? और आइडेंटिफाई करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ट्रीट भी करना पड़ेगा। तो आप लोग बताओ चलो क्या करना चाहिए अभी। लेट्स से वी आई जस्ट डिलीट सम रैंडम वैल्यूज इन आवर डेटा। लेट्स से इफ आई डिलीट दिस वैल्यूज, दीस आर द वैल्यूज व्हिच हैव बीन डिलीटेड। ओके तो पहले तो हमें क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि आर देयर एनी मिसिंग वैल्यूज इन आवर डेटा। कैसे करेंगे आइडेंटिफिकेशन? Count. एग्जैक्टली काउंट ब्लैंक एक है, वेरी गुड। और दूसरा मेथड? Median. मीडियन से कैसे पता चलेगा आपको कि डेटा में मिसिंग वैल्यू है कि नहीं? ठीक है ठीक है, लेट्स से आपको पता चला यहाँ पे कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। ओके तो सेल्स और यूनिट सोल्ड ऐसे दो आपके कॉलम है जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज हैं। और एक और जगह पे करते हैं, चलो लेट अस डिलीट दिस वन। ओके
कैटेगोरिकल डेटा भी एक जगह पे है और इसमें भी है, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे इसको करता हूँ। ओके, हाँ अब बताओ चलो कैसे करेंगे इसको। रेक्टिफाई करके। हाँ कैसे करेंगे रेक्टिफाई, एनी आइडिया? हम्म एक फंक्शन लगाएंगे सर फाइंड करने के ओके, एवरेज या मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन। एवरेज या मीन। ओके ठीक है, तो चलो मैं न्यूमेरिकल का डेटा का तो निकाल दूँ, इज इक्वल टू एवरेज, यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। एवरेज आ गया, सेम गोज हियर आल्सो। यहाँ पे मीडियन भी निकाल देते हैं हम, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज। ऐसे तीनों लगा के रख देते हैं हम। फिर ड्रॉप डाउन क्या आ रहा है? चलो लगा दिया, बताओ अभी। चलो चलो जल्दी बताओ, यही यार इतने सारे थ्योरी हमने किया, इतना सारा सब किया, अभी जब अप्लाई करे तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी तो आउटलायर We बाकी will है। हाँ बोलो, will add in that cells sir अभी क्या करेंगे सेल्स कॉलम में? सेल्स और जो इंडिया जो ब्लैंक मिसिंग सेल्स है ना उसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर एवरेज नियर टू इट होगा तो हम उसको रखेंगे। नियर टू व्हाट? नियर इफ अगर हम एवरेज कंसिडर करेंगे तो हम हाँ एवरेज कंसीडर करेंगे तो, बट दोनों में से कोई एक तो करना पड़ेगा ना, हमें डिसाइड तो करना पड़ेगा, तो कौन सा करोगे वो मैं बोल रहा हूँ। सो बेटर टू मीडियम सर। ओके मीडियम। ठीक है, मीडियम। ये चलो सेल्स का हो गया, बाकियों का क्या? बाकी कॉलम्स के बाकियों का व्यू क्या है, कोई बताओ चलो। जैसे अभी कैटेगरीज में देखे तो वहाँ पे भी मैचिंग मिलता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक होम होम, फिर वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो फिर ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए ओके उसका और पैटर्न, कैटेगरीज का पैटर्न। ओके मोड फाइंड आउट करो। Yes, sir. फ्रीक्वेंसी कैटेगरी। ओके फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो देखो कि आप तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आना चाहिए। यस सर। यस सर प्रॉब्लम। ठीक, let me take this as on another level. Now let's say let me rephrase the deleted value। ठीक है, अब बताओ चलो। अब ये मत कहना सर हमें पता है होम आपने डिलीट किया इसलिए होम बताएंगे, बट जिस तरह से आप कह रहे हो कि हाँ बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की ज्यादा है, तो आई शुड राइट इट ओवर इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली, वी विल गो विद दैट। ओके अगर हम उस तरह से जाते हैं। प्रोडक्ट सर, उसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया गया को किस कैटेगरी में आता है। यस इट इज वेरी गुड, जैसे इट कि इज वेरी गुड टू लैपटॉप। पॉइंट आउट दैट।
Yes, yes, it is. It is very good that you have observed and it is very good that you have pointed out. See, अगर मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, ओके, और सिर्फ एक ही कॉलम है, तब जाके वो प्रोसेस याद रखना है, फिर वो प्रोसेस को करना है कि मैं मोड निकालूंगा, सबसे फ्रीक्वेंट है वो डालना, वो ठीक है, आई एम एग्री विद दैट. बट व्हेन यू हैव अदर कॉलम्स और लेट्स से अदर डेटा व्हिच इज रेफरिंग टू दैट, you need to get that as a reference also. Your process or your method is not wrong, but relying only on that will be weak, or let's say will be not as accurate as understanding the pattern in your data. You have to understand pattern also. Here it says blender, which is of home category. It should come in that. Clear hai guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So, sir. so do not always rely on mean median mode, but also make sure कि डेटा के साथ में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसे भी ग्रैब करो. पैटर्न जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि भाई कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेडेड होता है डेटा सेट में ना, उसको भी जरूर फाइंड आउट करना है. ठीक है. हाँ, यूनिट सोर्ट का क्या भाई बताया नहीं. और मीडियन सर. मीडियन ओनली सर. मीडियन, ओके. किसी को यहाँ पे कुछ और ऑप्शन देना है? No, sir. Okay. Now, instead of this, क्या हो गया? Sir, आप से करते हैं. ठीक, आपको जो मोड यहाँ पे दिख रहा है, ओके, रादर देन मीडियन, ठीक है, मीडियन में भी 3 बताया है. इट इज वेरी गुड कि चलो समवॉट वो उसके क्लोज या फिर उसके 3 में ही रैप अप हो गया. ओके, ये आप कल कह सकते कि कोइंसिडेंस है कि चलो दोनों तीन तीन है. बट कभी भी ध्यान रखिएगा, वेन एवर वी से यूनिट सोल्ड, आप मुझे बताओ कि ये यूनिट सोल्ड हम एनालिसिस क्यों करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन ये रहेगा, आप यूनिट सोल्ड ये एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, मुझे वो बताओ. या कोई भी एनालिसिस जो करेगा बिजनेस में, वो इसको क्यों करेगा वो बताओ. कोणत्या प्रोडक्टची जास्त इलेक्ट्रॉनिक्स विक्री में व्हायली कितने मोस्ट कोणत्या सेलिंग हाँ हाँ सेलिंग सबसे ज्यादा क्या सेल हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हाँ कौन सा डिवाइस प्रोडक्ट सेल हो रहा है चेक करने. ओके. तो यहाँ पे 3 लिखने से कैसे पता चलेगा, बिकॉज देखोगे तो 3 तो ये भी है, लैपटॉप भी 3 है, लैपटॉप भी 3, टीवी भी 3 है, तो ऐसे केस में तो लैपटॉप पर और यूनिट टीवी दोनों. कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट पता कैटेगरी चलता है. वाइज देख सकते. ओके, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मैं यहाँ पे एक वैल्यू डालूंगा जो कोई भी. ओके, आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस में या फिर जो भी है कैटेगरी, उसके बेसिस में मुझे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा सेल आउट क्या हो रहा है, फिर कौन सा प्रोडक्ट सोल्ड सबसे ज्यादा हो रहा है. ठीक है, लेट्स से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर करूंगा. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, व्हेन आई टेक फ्रॉम कैटेगरी वन ऑफ अ क्लास विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लूंगा तो क्या होगा, देखो ऐड होगा. ओके, 3 + 5 + 2, अगेन 2 प्लस आपने जो 3 लिखा है 3 + 3, जो इनका टोटल हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू मुझे देगा, समवॉट एक्स, ठीक है, सम जो है ना उनका टोटल वो मुझे देगा, और होम रहेगा तो होम का टोटल अलग मिलेगा. तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा जा रहा है, कैसे पता चलेगा भाई. यस भारत बताइए, क्वेरी आपकी. भरत कुछ क्वेरी है, आपने हाथ ऊपर किया ना. नो सर, नो सर. अरे क्या बात कर रहे हो यार, अभी देखा मैंने, ऐसे थोड़ी है. क्वेरी नहीं है या सॉल्व हो गया है क्या, मतलब आई डिडंट गेट इट. नो सर.
ठीक है ठीक है। समीफ, ओके समीफ करता हूँ देखो, इफ्स करना पड़ेगा मुझे, नॉट इफ्स, समीफ सम क्राइटेरिया मेरा ये है, ये सॉरी ये वाला क्राइटेरिया है, एंड comma criteria range is this, where I have to make sure criteria is TRONICS and control down, but यहाँ पे लिखते हुए और यहाँ पे मुझे होम करना पड़ेगा। देखो आपको क्या आंसर मिला, देखो 10 8 और ये इन को टोटल करोगे तो आपको मिलता है 19, इलेक्ट्रॉनिक्स का 15 मिलता है। तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय तो होम ज्यादा हो रहा है। बताओ अभी क्या करेंगे? मैं 3 ऐड भी कर दूं तो भी 18 होगा। तो यहाँ पे वो वैल्यू जो आप ऐड करने वाले हो उसका अभी से क्या रिलेशन है, आई डिडंट गेट इट, वो मैं जानना चाहता हूँ। क्या आपने लॉजिक लगाया, क्या बताओ? क्योंकि देखो आंसर तो ऐसे ही आएगा ना, आंसर ये ऐसे ही आएगा ना, सही है ना, या कुछ गलत है इसमें? गाइस आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सही है, एक्सेप्टेबल है, या कुछ गलत है इसमें? करेक्ट सर। ये तो काउंट कम है ना सर, ये तो किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स और होम का हाँ हाँ यूनिट। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है 3 3 6, हाँ 6 में से एक मिसिंग है तो 5 हो जाएगा, तो 15 में 5 से भाग दे देंगे, एवरेज लगभग आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। नहीं देखो आप अभी एनालिसिस क्या कर रहे हो, अगेन मुझे देखना पड़ेगा। सी माय क्वेश्चन इज, आप ये जो यूनिट सोल्ड करके जो हम कॉलम रखेंगे या फिर जो हमने रखा है वो क्यों रखा है हमारे पूरे डेटा सेट में? इस यूनिट सोल्ड को रखने का क्या रीजन है वो मैं जानना चाहता हूँ। आप क्यों उसे एनालिसिस करना चाहोगे ये मैं जानना चाहता हूँ, दैट इज माय क्वेश्चन। नाइस। टू अंडरस्टैंड मतलब कितने प्रोडक्ट सेल है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल। ओके एक जो आंसर आपने बताया इट इज वेरी गुड, वेरी लेजिमेट, और जो मैं सुनना चाहता था, द थिंग इज ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक्स होम्स वगैरह इसमें आप देख रहे हो डिटेल्स, आपको ये जानना है in electronics we have multiple products, in home we have multiple products. So the thing over here is that we don't have to look over here, instead of we have to look over products. Here this product will tell us that whenever a person comes or whenever a person comes and asks for laptops, how many laptops he has been asking or how many he has been taking. If he is asking for smartphone, how many of it has been sold. If asking about TV. आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? You are finding out that in relevant to each and every product we have, in a general way, what or let's say how is the quantity being sold normally. Okay, एक टीवी है तो उसका नॉर्मल हम क्वांटिटी कितना सोल्ड करते हैं, अगर ब्लेंडर है तो हम क्वांटिटी कितना सोल्ड करते हैं, इससे आपको पता चलता है कि बास्केट की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो किसी मॉल में वगैरह, तो आपके बास्केट में मिनिमम प्रोडक्ट्स आप कितना रखते हो, एटलीस्ट कम से कम। ओके मेरे शॉप में आओगे, ऑब्वियसली आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को देखोगे, अलग अलग प्रोडक्ट का क्वांटिटी अलग रहेगा, बट आप कभी भी आते हो मेरे शॉप में, तो मेरे शॉप में जब भी आप बकेट लेके आते हो या फिर आपका बास्केट लेके आप शॉपिंग करते हो, तो कस्टमर मिनिमम क्वांटिटी या फिर एक ऐसा क्वांटिटी जो वो लेता ही लेता है, मुझे वो एनालिसिस करना पड़ेगा ना गाइस। यस सर। यहाँ पे इस यूनिट सोल्ड का वो लॉजिक है, बिकॉज व्हेन वी आर लुकिंग ओवर ऑल द नंबर्स, हम ऐसे तो नहीं देख रहे कि भाई लैपटॉप का 3 है, स्मार्टफोन का 5 है, ऐसे तो मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा कि स्मार्टफोन का कितना हुआ है, ऐसे हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, विच इज गुड। मैं उसके बारे में नहीं कह रहा कि गलत है, पर जब हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट मतलब क्या है? इट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट, ऑल द डेटा, इट इज नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यूनिट सोल्ड मतलब क्या है? हर एक का जब हम बात कर रहे हैं तो वी विल
सी दैट इफ देयर इज एनी वैल्यू विच इज मिसिंग, अगेन हमारा कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, हमें मिसिंग वैल्यू को देखना है कि कैसे ट्रीट करना है, हमें बाकी एनालिसिस नहीं करना है। जब आप बाकी एनालिसिस करोगे तो इट इज वेरी गुड कि आप उसे पार्ट पार्ट वाइज में कैटेगराइज में करो। अभी यहाँ पे क्या है हमारा गोल, हमें इस मिसिंग वैल्यू को फुलफिल करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो टेकिंग मीन will give this answer. Taking median right now it has given this answer which is very much coincidence with this mode. तो मैं यही करूंगा यहाँ पे 3। क्यों करूंगा, देखो आप यहाँ पे चेक करो, आपके इसमें देखिएगा कि 3 का जो रिपीटेशन है, 3 का रिपीटेशन, ओके 3 का देखोगे तो 2 बार आया है, 2 का भी 2 बार आया है। तो आप देख सकते हो कि आप इस पूरे डेटा सेट में रिपीटेशन ऑफ 3 इज मोर, अगेन 2 भी है बट 3 इज मोर कंपेयर टू ऑल अदर क्वांटिटीज, विच मीन्स people who are coming into my shop, there is more probability of taking 3 products. It can be of any category, any product type, but taking 3 products is something which will they pursue. Correct है? Yes sir. ये यहाँ पे से आपको एनालिसिस करना होता है। ओके, क्लियर है गाइस? So even we sir, can Yes, find average sales. हाँ, पर सर Even अगर we can find दो average sales दो price रहे per तो unit. दो देखो, 2 है ना आपके पास, मल्टी है, देखो 2 है ये, तो दोनों में से आपको कोई भी करो ना। देखो यहाँ पे दोनों आपके पास है ना, ये भी 2 बार है, ये भी 3 बार है, तो इट इज गुड। ओके, अगर मल्टी है, जैसे 5 के भी अगर 2 होते हैं तो 5 3 2, उसमें से कोई ना तो एक रहेगा रहेगा, isn't it? यस सर। Okay, so instead of, see why we are taking this, see instead of taking random value जैसे 10 है 8 है, इसको यहाँ पे फुलफिल करने के बजाय जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की वो बेटर है ना। यस सर। दैट व्हाट वी आर सर्चिंग ओवर हियर, और हम वहाँ पे वही पुट करेंगे। ओके, या और कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे थे? So even we can find average selling price per एवरेज सेलिंग like प्राइस, ये divided by यूनिट वाला है unit. ना कॉलम, Yes, sir. यूनिट कॉलम में आपका प्राइस नहीं आएगा ना, वहाँ पे तो क्वांटिटी आएगा, और क्वांटिटी I'm आपको telling, हमेशा like sales divided by units sold, we can get average price for the each unit. हाँ, अगर यूनिट प्राइस है, अगर कोई उसका प्राइस वाला कॉलम होगा तो कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे हमारा यूनिट सोल्ड है ना, यूनिट सोल्ड मतलब क्वांटिटी। ओके ओके, एनी अदर? हाँ बोलो। अगर सर उसमें एवरेज डाला तो फिर कितनी ज्यादा अमाउंट हो जाएगी क्या, 3 से ज्यादा ही है? देखो एवरेज वैल्यू आप डालोगे तो क्या है 4.25, अगेन आपके डेटा सेट में 4.25, लॉजिकली देखा जाए तो डिस्क्रीट डेटा में अगर आप 4.25 डालोगे तो आपको लगता है क्या कि हम 4.25 क्वांटिटी का भी लेके यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इजंट इट? ओके। क्वांटिटी कैन बी 1 2 3, इट कैन नॉट बी 2.5, करेक्ट? यस सर। सो अगेन दैट डेटा टाइप हैज टू बी, आप कहोगे फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको 4.25 की जगह 4 करेंगे, राउंड अप कर दे, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट अगेन आपके डेटा सेट में देखो क्या 4 का कहीं पे भी आया है क्या वैल्यू, क्या कहीं पे भी वो आया है क्या डिनोट? तो इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू वैल्यू और लेट्स से द वैल्यू व्हिच इज नॉट बीन देयर, वो अच्छा है या ये वाला अच्छा है, बताओ? 3 या 2 अच्छा है। एग्जैक्टली। ओके, क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके सर, यस सर। ठीक है, तो विल स्टॉप ओवर हियर टुडे। मंडे को आएंगे, मंडे को मॉरिस से भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आपको एक डेटा सेट शेयर करता हूँ, उस डेटा सेट में आपको ऐसी तरह से कुछ एनालिसिस करने होंगे, ऐसे कुछ मैं आपको क्वेरीज शेयर करूंगा जहाँ पे मीन मीडियन मोड के हिसाब से ग्राफ वगैरह कुछ होंगे जो आपको, ठीक है ग्राफ नहीं बट नंबर्स के बेसिस में एनालिसिस करने होंगे। सो मेक श्योर उसे जरूर आप वर्कआउट करो। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू गाइस। Thank you, sir. सर आपने जो नोट्स की पीडीएफ भेजी थी वो 8 पेजेस की थी, टोटल कौन सी? 3 पेजेस लास्ट की, तो ये लास्ट वाला जो नोट्स का पीडीएफ था ना सर, हाँ आई थिंक मैंने कल मैसेज भी डाला था, तो उसमें लास्ट वाले पेजेस मिसिंग एक पेज मिस है सर लास्ट। ओके, एक सेकेंड ना, मैं चेक कर लूँ। जून है ना, अच्छा हाँ उन्होंने आपने कहा एक मिसिंग है करके। ओके ओके, लेट मी सी व्हिच इज मिसिंग। अच्छा अच्छा, इनकोडिंग के बाद में
डिस्क्रिटाइजेशन के बाद इनकोड के बाद में अच्छा स्केलिंग और ओके ओके ठीक है मैं उसको करता हूँ, रेक्टिफाई करके वापस से भेजता हूँ। ओके थैंक यू।